Good evening and welcome. Thanks very much for tuning into NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, remember, on a story that matters to you, that you're talking about, which is the big news headline of the day, the buck stops here. Today, let's talk a little bit about history. Let me take you back to 1937. The then Congress government caved in to a series of objections from fundamentalist figures to truncate our national song Vande Mataram. The reason given was that certain later stanzas in Vande Mataram contained references to Hindu goddesses like Durga, Lakshmi, Saraswati, and this was irritating to the Muslim community. That's what Pandit Nehru had said at that time. Almost 100 years later, now that all 6 stanzas of Vande Mataram are being restored, now that it is going to be sung in its entirety, the same communal veto is back. What we saw way back in 1926 is being repeated in 2026. As soon as the government formulated rules that the 6th stanza, 3-minute, 10-second version of Vande Mataram will now be played or sung at a number of official occasions, the protests have started. The outrage is audible. Why? The argument is the same, that it's hurtful to religious feelings, that it goes against the freedom to practice one's religion. Everyone has jumped in. AIMIM has jumped in. All India Muslim Personal Law Board has also jumped in, although what this has to do with Muslim personal law, I fail to understand. Some even linked it to the Bengal election, and the central premise essentially was, don't foist a song that talks about Hindu gods, that talks about Hindu idols on Muslims in a secular country. भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाने का एक हथियार बना दिया, और अब ये मनमर्जी कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप जबरन करेंगे तो हम बिल्कुल इसको नहीं मानेंगे। मैंने पहले भी कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि जबरन आप मुसलमानों के गर्दन पर छुरी रख के वंदे मातरम नहीं कहलवा सकते। आपने इसको एक हथियार बना दिया है। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने भला माने, मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आजादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है, जैसे हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि ये हमारी आस्था का मामला है। ये अगर कहेंगे कि मुझसे मैं पढ़ूं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा धर्म मुझे इजाजत नहीं देता। सजदा मैं यहीं कर लूंगा, सजदा करने में दिक्कत नहीं है, सजदा मैं यहीं कर लूंगा, लेकिन मेरा धर्म जो कहता है, इसकी आज़ादी मुझे संविधान ने दी है, मैं अपने धर्म के हिसाब से चलूंगा। मैं आपके ऊपर आप थोप नहीं सकता कि आप मेरे धर्म के हिसाब से अपनी उपासना करो। But here's the thing. Look, you could question the timing of this decision by the government. You could even raise doubts about the politics of it all. But very simply, let's examine the objections that we are hearing to the singing of the full Vande Mataram and see what is the real intent and message of these objections. Remember, in 1938, even after Vande Mataram had been shortened to 2 stanzas to remove the mention of any Hindu goddesses, even then Muhammad Ali Jinnah opposed it. In 1938, when a simple hymn to the motherland was being sung, Jinnah said, and I quote, that it is idolatrous and in its origin and substance, it is a hymn to spread hatred for the Muslims. Why did he say that? Was it because there was any Hindu imagery there? No. The simple fact is that Jinnah was opposed to any form of Vande Mataram, even the truncated, even the shortened form of Vande Mataram, because it was taken from Anand Math, where sannyasis rose up in rebellion against the British. And it is simply this association that has always made Vande Mataram unbearable for sectarian figures. The same kind of sectarian figures who today are raising their head and who pretty much echo the same excuses that Muhammad Ali Jinnah did way back then. But that is only an excuse. What Jinnah said at that time did not make any sense, and neither do these howls of protest in 2026, whether it be the AIMIM or the All India Muslim Personal Law Board, or people like Imran Masood and S.T. Hassan of the Congress and Samajwadi Party, which are supposedly secular parties. So the simple question then is, will the communal veto be allowed to cancel Vande Mataram yet again? Will this 1937 mindset be allowed to prevail in 2026 as well? Joining us on the show today is Aparajita Sarangi, MP and National Spokesperson of the BJP. We have Mohammad Faiz Khan, convener of the MRM.
Also joining us is Advocate Varis Pathan, national spokesperson of the AIMIM and political analyst and senior journalist. Ashutosh is joining us now. But I want to start with Varis Pathan because it's very interesting that the mindset of 1937, Mohammad Faiz Khan, what we saw in 1937 is again back. 2026 में ये कहा जा रहा है कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ है, बट जब ये छोटा भी कर दिया गया था वंदे मातरम को, तब भी मोहम्मद अली जिन्ना को प्रॉब्लम थी, और जब छोटा है ये 2025 में 2024 में, तब भी कई लोगों को प्रॉब्लम है। देखिए, इसको अनवस्था दोष कहते हैं, इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस। आपने जो सुना होगा ना, एक वर्ड अभी डिबेट में बार बार आ रहा था, यानी कि आप इनके लिए कुछ भी कर दो तो ये हमेशा असंतुष्ट रहेंगे और आखिरी में ये कर देंगे कि एक भी हिंदू या एक भी प्रतीक या एक भी हिंदुस्तान शब्द भी क्यों बचा है, जब तक ये इसको खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये जिन्ना की मानसिकता है, उसको तुष्ट करने के लिए 1937 में हमने 6 से 2 स्टेंजा कर लिए, फिर भी उसने पाकिस्तान ले लिया। ये तो नहीं कहा भैया 2 स्टेंजा कर लिए तो हम 2 स्टेंजा काट दें। पहले वंदे मातरम काटा, फिर देश बांटा, और आज भी वो विचारधारा कायम है। मेरे कहने का ये मतलब है, बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा कि जी हम होली नहीं खेल सकते, हम दिवाली की मिठाई नहीं खा सकते, हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, हम भारत माता की जय नहीं कर सकते, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, तो उनको 1947 में एक अलग नेशन दे दिया गया। अब आपको जो भी गंदगी गार्बेज फैलाना है वो वाले हिस्से में फैलाओ। यहां तो भारत और भारतीय संस्कृति के हिसाब से बात चलेगी ना, तो भारत और भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम लोग, आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट, यानी कि आपकी जो डिग्री है ना उसको संस्कृत में सरस्वती कहेंगे। जो हमारी डिफेंस सिस्टम है ना पूरा, हमारे व्योमिका सिंह जो है, कर्नल सोफिया कुरैशी जी जो है, डॉक्टर टेसी थॉमस है, इसको एक शब्द में संस्कृत में दुर्गा कहेंगे। हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसको सरस्वती कहेंगे। जो हमारा पूरी जीडीपी है, हमारे फार्मर्स हैं, हमारे यूथ है, जो हम लोग पूरा पावर लगाते हैं देश को समृद्ध बनाने, उसको संस्कृत में लक्ष्मी कहेंगे। यही बात कही गई है, त्वम ही दुर्गा दश प्रहण धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। इतनी सी बात है कि हमारा देश समृद्ध नहीं होना चाहिए, ज्ञानवान नहीं होना चाहिए, कि हमारा देश शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। मैं मुस्लिम हूं, प्योर मुस्लिम हूं, और मैं अच्छे से जानता हूं कुरान शरीफ में उम्मुल कुरा शब्द आया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि मक्का को मां कहा गया। जब उनकी जन्मभूमि को मां कहा जाता है तो मैं अपनी जन्मभूमि को भारत मां कहूंगा। इसी तरीके से कुरान शरीफ का जो पहला सूरा है उसे उम्मुल कुरान कहा गया, यानी कुरान शरीफ की मां कहा गया, यानी साहित्य को भी मां कहा गया, जमीन को भी मां कहा गया, और मां के कदमों में जन्नत जन्म देने वाली को भी मां कहा गया है। उसी को हम संस्कृत में कह रहे हैं। भाई अब हमारे देश का राष्ट्रगान राष्ट्रगीत तो संस्कृत में होगा, हिंदी में होगा, बंगाली में होगा, गुजराती में होगा, मराठी में होगा, कन्नड़ में होगा, तमिल में होगा, तेलुगु में होगा, अरबी में तो होगा नहीं। जब आप लोगों ने देश ही काट लिया इस विचारधारा ने, फिर आप लोग फिर वंदे मातरम को काटने पे क्यों तुले हुए? फिर मैं कह रहा हूं, ये आखिरी व्यक्ति तक जब तक रहेगा इस दुनिया में, इस देश में, ये जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाएंगे। जिहाद पवित्र शब्द है, फिर मैं कह रहा हूं, मैं भी जानता हूं जिहाद का बड़ा पवित्र अर्थ है, लेकिन ये इसका मिसयूज करके आतंकवाद फैलाते हैं। इस सच्चाई को भी समझना चाहिए। Okay, let's stick to Vande Mataram for right now. And a very explicit and elaborate explanation was given by Faiz Khan Saab over here. Now, Varis Pathan, the simple thing is that today we can keep arguing about freedom to practice religion, you know, how it is about idolatry, how we cannot worship, Durga, Lakshmi. But the fact is that even when it was only 2 stanza, when there was no reference to any Hindu goddesses, even then you did not sing it. So this is not about, trying to thrust something on Muslims. Your principal opposition is to Vande Mataram itself, whether it is 2 stanza, whether it is 5 stanza, whether it is 6 stanza. Yeah, well, Padmaja, let me speak in Hindi because some few people sitting on your panel does not understand English language, and better they don't even understand the constitution. सबसे पहली बात सुनिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमको वंदे मातरम का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान ने हमको अधिकार दिया है
राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन आर्टिकल 25। आपको आपका रिलीजन प्रैक्टिस का अधिकार है, मुझे मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो आप इंटरनेशनल लोग है, आप पेट्रियोटिक नहीं रहे, यह असंवैधानिक बात है। बात नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है बिजॉय इमैनुअल के केस में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग इसमें फर्क है। अगर नेशनल एंथम में वन क्वेश्चन टू आस्क यू, मेरे को बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको 6 स्टैंजा से प्रॉब्लम है, आपको 2 स्टैंजा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? You were very silent and quiet when he was making his point. I would like you to extend me the same courtesy, please. Because I don't want there to be any confusion. Please adjust this. I am getting echo. Yes, I will adjust it in 10 seconds. Let me just understand from you कि जब तक हम वंदे मातरम के 2 स्टैंजा गाते थे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, आपको बाकी के 4 स्टैंजा से प्रॉब्लम है। देखिए, मुसलमान का ईमान क्या बताता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देयर इज ओनली वन गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, एंड वी प्रोस्ट्रेट ओनली टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वी don't do vandana of any other things. That is the religion which we have been practicing as a Muslim. But Mr. Pathan, the first 2 stanzas only talk about the beauty of the motherland. Kind of words, very shirk. Shirk means Sumadala Shobhini, Subhashini, Sumadura. How can you say no? How can you say that? It only talks about the beauty of the motherland. There is no reference to any gods in the first 2 stanzas. Okay, you go on. इसीलिए अभी तक 2 स्टैंजा गाए जा रहे थे। There are certain Additional 4 lines in stanzas the से प्रॉब्लम है, correct? But why you want us to? But why? No, your faith is your faith. My faith is my faith. Why you want to impose your faith upon me when the Constitution has guaranteed me the right under Article 25 to practice religion of my own choice? Why should I? Because and who are the BJP and the RSS first to give 2 a certificate of stanzas of nationalism and Vande patriotism? Mataram Who are are not they? about faith at all. It simply talks about your mother. Do you know the irony is that when in 2024 So you want to place it above the national anthem? Owaisi Sahab took oath inside the Parliament of India. He said Jai Philistine, but he has no problem. I mean, he has a problem in saying Vande Mataram. Jai Palestine आप कह सकते हैं, but Vande Mataram नहीं कह सकते when they both literally mean the same thing. We are proud Indian Muslims, and when the national anthem is played, we give full respect and we proudly sing the national anthem, Jana Gana Mana. Whenever it is sang, we stand up, we sing on the 15th August, 26th January, wherever we get, wherever place we are, whichever place we are, we sing the national anthem. What is the problem in singing Sujalam, Sufalam, Malayaj Shitalam, Sashya Samala Mataram? My religion does not allow me. My religion does not allow me. इनका धर्म अलाउ, मेरा धर्म मुझे इस बात की इजाजत तो भैया पता नहीं आप किस धर्म को मानने वाले हो। मैं माफी चाहूंगा कि वतन की मोहब्बत से आपका धर्म मजहब, मैं इसलिए आपके लिए हिंदी में बोला भाई साहब, मैं आपको इसलिए हिंदी मलयज शीतलाम समझ सकूं मेरी अच्छा बात जल को, हो, वरना आप बोलोगे मुझे वारिस पठान ने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। सुगंधित हो, इसलिए आपके लिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। सब कुछ सुखी सुख हो, यही तो कहा जा रहा है वंदे मातरम में। ये मजहब इजाजत नहीं देता भाई, आप किस मजहब को मानने वाले? इस्लाम नहीं कहना, इस्लाम इजाजत नहीं देता इस बात की कि आप जिस वतन में बोलिए साहब, आपका ईमान आपके साथ, ठीक आप है? कब्र में जाके आपको जवाब देना है। हाँ, मैं जवाब दे लूंगा, मैं जवाब दे लूंगा, और बिल्कुल भारत की भूमि पर सजदा करूंगा, भारत का गुणगान मैं संविधान को मानता हूं, नहीं कहूंगा। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति, और संविधान ने मुझे इजाजत दिया है। संविधान का अनुच्छेद 51 का बिंदु ख क्या कहता है साहब? आप तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। 51 क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। जी, उनको बोलने कर सकते। अरे मुझे बोलने दो, आपका टर्न चला गया भाई साहब, आपका टर्न चला गया। ये डिबेट है, पर्सनल इंटरव्यू नहीं है। प्लीज क्लैरिफाई टू हिम दैट दिस इज नॉट अ पर्सनल इंटरव्यू। Okay, finish your point, Varis Pathan, then I'll open this up. One of the panelists like us. Allow me to make my say. This is what happens when you again and again interject, Padmaja. This is what happens. That is why you disturb your entire debate. Then the people want to hear what I want to say. And he's already been given time to speak on it. When he got time, he said whatever he wanted to. Finish your point. Allow me. देखिए, मैं आपके लिए हिंदी में बात कर रहा हूँ मौलाना साहब, आपको समझा रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय हिंदू राष्ट्र। एक एक करके प्लीज बोलने दीजिए उन्हें। सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोल दो, सारे जहां से अच्छा हाँ जिंदाबाद। अच्छा, सारे जहां से अच्छा शिर्क है कि नहीं ये बताओ। कोई आपको रोक रहा है क्या? कोई रोक रहा है क्या? आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको बीजेपी ने भेजा है बोलने के लिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो आप बीजेपी आपको निकाल देगी, आप प्रवक्ता भी नहीं रहोगे, कुछ भी नहीं रहोगे। तो आपकी मजबूरी है जो आपको ईमान से भी अलग जाकर बोलने पर मजबूर कर रही है मौलाना। इसका हिसाब अशर के मैदान में आप किस हिसाब से दोगे वो तो अल्लाह है और आप है। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, एक देशभक्त हिंदुस्तानी हूं, उस बात को आप समझ लीजिए। आप मुझे जानते ही नहीं। प्लीज फिनिश योर पॉइंट एंड आई वांट टू ओपन दिस अप। यस, आप आरएसएस और बीजेपी के ही पट्टू हो, उन्हीं के प्रवक्ता हो, उन्हीं की विचारधारा। okay, I'm going to reduce everyone's mic because this is not a back and forth between Waris Pathan and Faiz Khan. Let me bring in Ashutosh on this. Okay, let's not make this personal, please. Let's not make this personal. Let me bring in Ashutosh so that everyone can calm down for a bit. I'll come back to you, Waris Pathan. My simple point is that today when freedom to practice religion is being spoken about, where is the freedom to practice religion? You know, when we had only 2 stanzas of Vande Mataram being sung, at that time, and let me quote with examples. In 2017, Waris Pathan himself was an MLA in Maharashtra where he refused to sing Vande Mataram. He said, even if somebody puts a gun to my head, I will not sing. There was no reference to Durga and Saraswati in Vande Mataram at that time. At that time, we had Akhtarul Iman, who is an MLA of the AIMIM in Bihar, refused to sing Vande Mataram. Again, there was no reference to Durga and Saraswati or Lakshmi in Vande Mataram at that time. We had Shafiur Rahman Bark, who inside the Parliament of India walked out of Parliament in 2013 because Vande Mataram was being sung. He did it again in 2019 when he was in Samajwadi Party. Sing the national anthem. My question is, sir, एक second, Waris bhai, एक second. Why you have issues? वॉइस स्लो कर दो। एक second. Padmaja, I know your difficulty. You want to divert the mind of the nation from Epstein files, from the trade deal which is done by Modi under pressure with Donald Trump. I know you have difficulty. I know you have your own agenda, but kindly allow me to make my point, Padmaja. Sir, I have at length spoken of Puri's name is files. gone. Puri's name is gone. Anil Ambani's name is gone. Okay, let's just keep Ashutosh and Waris Pathan. Quickly make your point. Tell me a simple reason that in 2017 you refused to sing Vande Mataram. There was no reference to Durga, there was no reference to Lakshmi, there was no reference to Saraswati at that time in the 2 stanzas. Because why they did you forced me refuse? to. They forced me to say, I said I won't. Even if you put a gun on my head, I won't. तो उसमें धर्म की बात किधर थी? I won't. वारिस साहब, उसमें धर्म की तो कोई बात ही नहीं थी. Why you want to interfere into my religion practices? Am I going against the constitution? Am I going against the constitution? The constitution speaks of freedom of speech and expression. Nobody can force me to say whatever. Nobody can force me to say or to sing. I said this, I should sing that. I respect the constitution. I respect Vande Mataram. I said so. I respect Vande. You want to sing, you may sing. But who are you to force me to sing? Who are the BJP and the RSS? Okay, so help me understand, Ashutosh. You have, I'm sure, sung all of Vande Mataram. Allah, and the constitution has given me the right to. Okay, everyone is familiar with the 2 stanzas of Vande Mataram. I'm talking about the constitution. Where do the 2 stanzas of Vande Mataram in any way go against the religion of any person? सी पद्मजा, हम एक चीज तय कर ले हम लोग, और मुझे लगता है ये तय होनी चाहिए कि कब तक हम मुसलमानों की देशभक्ति का टेस्ट लेते रहेंगे। ये तय होना चाहिए। रोज सुबह से शाम तक मुसलमानों की देशभक्ति का हम टेस्ट लेते। वंदे मातरम नहीं गा रहे तो आप देशभक्त नहीं है, आप फला चीज नहीं कर रहे आप देशभक्त नहीं है। अरे उनकी मर्जी, वंदे मातरम गाए ना गाए, इससे क्या कोई आदमी वंदे मातरम नहीं गाएगा तो वो देशभक्त नहीं होगा? मैं पलट के सवाल पूछ सकता हूं कि आरएसएस ने अपनी शाखा में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? मैं पलट के सवाल पूछ सकता हूं कि आरएसएस का एक आदमी बता दीजिए जिसने वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ा हो। मैं ये सवाल पूछ सकता हूं कि आरएसएस का एक आदमी बता दीजिए वंदे मातरम गाने की वजह से जेल गया हो। नहीं गया ना, तो क्या वंदे मातरम तब जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, जब आरएसएस के लोग नहीं गा रहे थे, क्या वो देशभक्त नहीं थे? मैं सवाल नहीं खड़ा करता हूं, लेकिन आजादी के इतने साल बाद कितना टेस्ट हिंदुस्तान का मुसलमान देगा कि भाई आप देशभक्त हैं, देशभक्त नहीं, बिल्कुल ये टेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। There were Muslims in the Congress who were singing Vande Mataram during the freedom struggle. नहीं पद्मजा, उनकी मर्जी थी, वो गाना चाहते थे गाते थे, नहीं गाना चाहते थे नहीं गाते। बट सर वही तो मैं कह रही हूँ कि जब वंदे मातरम को काट के छोटा कर दिया तब भी कई लोग नहीं गा रहे थे। जिद क्यों है भाई? नेवर अबाउट द आइडोलेट्री।
This was never about Hindu goddesses. नहीं नहीं नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जिद क्यों है कि आप वंदे मातरम गाओगे और फिर अगर नहीं गाओगे तो आप देशभक्त, ये जिद क्यों है? क्यों है ये जिद? ये जिद क्यों है कि हम नहीं गाएंगे? ये जिद क्यों है कि हम नहीं गाएंगे? चाहे आप उसको छोटा करो, चाहे आप उसको बड़ा करो, चाहे आप उसको 2 स्टैंजा रखो, चाहे आप उसको 6 स्टैंजा रखो। नहीं नहीं पद्मजा, क्या आप उनके मुंह में ठूसोगे कि आप गाओगे और नहीं गाओगे तो आप भारत माता की संतान नहीं हो? But sir, there are some basic things that you stand for as an Indian. This is like you saying कि if tomorrow somebody says I will not stand up for national anthem and you say no, as an Indian you should stand up for national anthem, you say आप देशभक्ति का टेस्ट क्यों ले रहे हो? आप उनके मुंह में नहीं ठूस सकते जनगण मन। अगर मान There are some basic things you do as an Indian. अगर कोई मान लीजिए कोई आदमी अगर नहीं उठ खड़ा होता है तो क्या आप जेल भेज दोगे उसको? फांसी पे चढ़ा दोगे? इससे उसकी देशभक्ति तय होगी? ये कौन सा तर्क है? ये मेरे पास किताब है, ये बंकिम चंद्र की, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको एक लाइन। आप उससे सहमत हैं? मैं सवाल सबसे पूछता हूं। इसमें अंत में ये लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार नहीं हो सकेगा। यानी अंग्रेज राजा होंगे तभी सनातन धर्म का उद्धार होगा। आप सहमत हैं इस बात से? ये इस किताब में लिखा हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? मैं तो हमारे मित्र कहना चाहूंगा, आदरणीय आशुतोष जी, सहमत हैं? मैं आपको नमस्ते करता हूं। आप जिस विषय पे जा रहे हैं तो वो विषय बहुत अलग हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी के हर पत्र के नीचे लिखा होता था आपका आज्ञाकारी नौकर, लेकिन उस विषय पे हम नहीं जाना चाहते, आपको भी पता है। यूर फेथफुल सर्वेंट, ये हर पत्र के नीचे लिखा होता था महात्मा गांधी के। लेकिन राष्ट्रपिता है, बापू है, पूज्य। मेरा एक निवेदन, आदरणीय आशुतोष जी, आई रिस्पेक्ट यू वेरी मच, मुसलमानों का अब तुष्टीकरण करना बंद कर दीजिए सर। अब नहीं चलेगा, कुछ मूलभूत बातों को आपको मानना पड़ेगा। राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा, राष्ट्रगीत का सम्मान करना होगा, वंदे और आपका ध्वज का सम्मान करना होगा। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह नहीं चलेगा। कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी नहीं चलेगी। चिकन नेक काट देंगे, नहीं चलेगा। हम ऐसे लोगों को कहेंगे वंदे मातरम और भारत माता की जय कहो और कहो कि इनके मुंह में ठूसा जा रहा है, तो भैया ठूसा जाएगा, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में भारत की बर्बादी छाई हुई है। फैज साहब, मुझे आपके वक्तव्य पर आपत्ति, मुझे नहीं मालूम आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं, माफ करिएगा। अगर आप दूसरों के मुंह में ठूसने की बात कर रहे हैं ना, आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, जिनके दिमागों में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भरा हुआ है, कश्मीर की आजादी, भारत की बर्बादी भरा हुआ है, उनके दिमाग से वो निकाल के वंदे मातरम ठूसना पड़ेगा। उनके दिमाग से वो निकाल कर भारत माता की जय ठूसना पड़ेगा। उनके दिमाग से चिकन नेक काट देंगे, निकाल कर जय हिंद ठूसना पड़ेगा। समझ क्यों नहीं पढ़ रहे? खान आशुतोष कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनरी जो कॉमन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर एक तरीके से थोपा जा रहा है। मैं क्या स्पेशल मुस्लिम हूँ? अरे मैं भी कॉमन मुस्लिम हूँ। मैं 1/140 करोड़ भारत हूँ। सबसे पहले मुस्लिम बाद में हूँ, 1/140 करोड़ भारत हूँ। और सबके लिए फिर कह रहा हूँ, कुछ बेसिक चीज निर्धारित करनी पड़ेगी। तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा, राष्ट्रगीत का सम्मान। ओके आशुतोष। पद्मजा, फैज साहब को बोल दीजिए मैं इनसे तर्क करने के लिए नहीं बैठा हूं। मुझे इनके नहीं मालूम किस संगठन से आते हैं, इनके एफिलिएशन का मुझे नहीं मालूम। मैं इनसे तर्क मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से है, MRN, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, आरएसएस का मंच है ना, वो आरएसएस का मंच। मैं भारत का मंच है। मैं एक भारतीय होने के नाते मैं ये सवाल पूछता हूं कि वो आरएसएस के लोग कहां थे जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था? भारत के तिरंगे को सलाम नहीं किया उन्होंने, और सरदार पटेल ने बाकायदा कोड़े फटकारे, उसके बाद कहा कि अगर आप नहीं करोगे छोड़ेंगे नहीं। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि आप कब तक मुसलमानों का टेस्ट लोगे भाई? कब तक? एक तय कर लो मुझे। बट आशुतोष जी, आई एम सिंपली आस्किंग यू अगेन, हाउ इज दिस अ टेस्ट एंड हाउ डू यू सी द इंसिस्टेंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल? माइंड यू, आई वुड स्टिल बिलीव दैट 99.9% ऑफ द रेगुलर पीपल वुड से there is no big deal. There will always be the political Muslims who will say this goes against our freedom of religion. I have already shown you that even when it was truncated, even when the religious connotation was taken away, there were people who refused to sing it. पहली बात Waris Pathan refused to sing it. No. आप उनको दुर्गा के बारे में नहीं गाना था, बट उन्होंने मना कर दिया कि मैं गाऊंगा ही नहीं, चाहे जो कर लो। पद्मजा के एक बात मैं कह सकता हूं, प्लीज गो ऑन। कितनी बार मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? वारिस पठान इस देश के भारतीय नागरिक हैं। एक भारतीय होने के नाते भारत का संविधान उन्हें इस बात की इजाजत देता है उनके मुंह से कि वो अपने धर्म के हिसाब से चलें।
या तो बट ये या तो मुसलमान संविधान बदल बोलना दीजिए। इसलिए जरूरी हो गया और- बिकॉज दे नहीं, टेक कोई जरूरी एक्सेप्शन नहीं। टू वंदे मातरम नहीं, बिकॉज नहीं। ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी सर इफ मुझे- दे सेड मुझे एज इस एन बारे इंडियन में- we are मुझे okay इस with बारे this में- they are मुझे taking इस बारे exception पर- to vande mataram because मुझे of their इस बारे religious में- identity which is why मुझे it comes इस बारे into play में घोर आपत्ति है कि उस आरएसएस के लोगों का हिंदुस्तान के किसी भी भारतीय की देशभक्ति जांचने का अधिकार नहीं है, जो आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे, जो अंग्रेजों की मुखबरी के आरोप जिनके ऊपर लगे थे, जो वंदे मातरम गाते हुए कभी फांसी के फंदे पर नहीं चढ़े थे। Okay. वो हमको Waris बताया Pathan, कि let me quote to you a very देशभक्ति interesting नहीं है। example, मुझे because we वारिस can- पठान की देशभक्ति पर रत्ती पर भी संदेह नहीं है। नहीं। वारिस पठान मेरे भाई हैं भारतीय होने के नाते। सर लेकिन जो लोग देशभक्ति उनके मुंह किसी में की थूकने यहाँ पे की हम बात क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं एंड No, no. nobody should be asked to बिल्कुल, prove बिल्कुल। their हिंदुस्तान के nationality or their मुसलमानों को टारगेट nationalism करते हैं आप but one does have to ask a few questions because और there ये are some लोग- very glaring hypocrisies. Let me give you another example. And Waris Pathan, आरएसएस संगठन से जुड़े हुए लोग, इनकी हिम्मत है, आजादी की लड़ाई का इतिहास इनके सामने पटक के दीजिए। Okay. पूछिए इनसे सवाल। Okay, let me ask Waris Pathan again just a second. अब मुझे बोलने Just a दीजिए। second. 1947 की जगह let me give you an example ये from देशभक्त 2023. Ashutosh ji, just a second. Waris Pathan, you would know this. In Maharashtra, there was this entire controversy about the playing of Garba. When the BJP at that time said that don't have Muslim youth enter Garba Pandal क्योंकि वहां पे दुर्गा की पूजा होती है. Imtiaz Jaleel said कि Muslims should actively participate in Garba. They should celebrate Hindu festivals. They should celebrate Goddess Durga. इससे अच्छा atmosphere बनता है. But when Durga is in Vande Mataram, you said नहीं हमारे ऊपर थोपा जा रहा है. गरबा में आप दुर्गा का पूजा करना चाहते हैं, वंदे मातरम में आप दुर्गा की पूजा नहीं करना चाहते. इस हिपोक्रेसी में तो कुछ तो सीमा होगी ना. जी सबसे पहले तो मैं आशुतोष भाई की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि कब तक आप मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से बात करते रहोगे। बात नंबर 2, पद्मजा, अभी हमारे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना, शक करना, नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म का, शर्म आनी चाहिए बीजेपी, आरएसएस और आपको भी। हम वो लोग हैं जो अभी फिलहाल विश्व में जाके पाकिस्तान की धुलाई करके आए, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, और आपका बीजेपी आरएसएस क्या कर रहा है? वही पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, 26/11 किया, अभी रेड फोर्ट में जिसका नाम आ रहा है, उसके साथ क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। क्रिकेट मैच कौन नेशनलिस्ट और कौन पेट्रियोटिक हो गया? चलिए बहुत बार सुन चुका हूं एमआईएम के द्वारा कि हम गए थे और पाकिस्तान की मजम्मत की। गलत तरीका इनका रहते हो, खाते हो, पीते हो तो भारत के शान में कहना पड़ेगा। पाकिस्तान की मजम्मत का एहसान क्यों गिना रहे हो भारत की सेवा करके? हम विदेश गए थे और भारत की शान का बखान किया ओवैसी साहब ने। अरे तो भारत में रहते हो तो भारत की शान का बखान करोगे। उनको खत्म करने दीजिए अपनी बात. अरे वो तो रूठ गए फूफा जी की तरह, उधर मुंह कर लिए ऐसे करके। बकवास में मैं डिबेट में नहीं लेता। अरे बताइए वारिस पठान अपनी बात पूरी की. मैं बोलूंगा पहला। बोलिए बोलिए बोलिए. दगर्दी है, मैं बोलूंगा पहले। लीव योर डिबेट इमीडिएटली। Okay, I don't have एक time. second. I don't have time to Mr. wait Khan. for the stupid people. I'm telling you, Padmaja. दगर्दी। That's why I'm telling you. Either you allow me or leave this debate now and now. Okay, go on. Waris Pathan. मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। Please, Mr. मेरे को मेरी बात सुना, तुम्हारी बकवास नहीं सुनना है। नहीं चलेगी और कासिम रिजवी की विचारधारा भी नहीं चलेगी। Okay. अखंड भारत की विचारधारा चलेगी। नहीं बोल चल बोल। Okay, Waris Pathan, finish your point, please. बोल चल बोल। नहीं Padmaja, if you don't reduce this matter, I have no interest in your debate. Go on, I'm not Mr. interested. Pathan. Finish your point. I don't have time. If you want me to speak, let me speak. Yes, go on. Finish your Without point. interruption. If you say that, if you feel that you are more intelligent, you know everything, you can go ahead. Go on, sir. I'm don't have time asking you for a your channel simple then. question. साफ When बात the बोल रहा Durga हूँ। Pandal was off limits, I am you said you answering you, want but to you want to interject participate. because it is against your agenda. But when it is about Vande Mataram, why do you Because you are think it is against imposition? your agenda. I will. No. I will destroy your agenda. Give me just 2 minutes. I Go will on. destroy your agenda. हिंदी में बोलूंगा ताकि आपके पैनलिस्ट को भी समझ में आए। हम पे जो शक करते हैं, हम पे जो नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म का डाउट करते हैं, उनके मुंह पे मैं बोलना चाहता हूं कि आप बेवकूफ लोग हो, आप देश के गद्दार हो। हम तो वो लोग हैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट तो अभी जाकर आए विश्व के अंदर और पाकिस्तान को पूरे विश्व के सामने एक्सपोज किया। वो पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, 26/11 किया, पहलगाम किया, और अभी जैश का नाम आया रेड फोर्ट के ब्लास्ट में जिसमें 15 लोगों की जानें चली गई। और उस पाकिस्तान के साथ ये बीजेपी, ये आरएसएस, ये बीसीसीआई, ये जय शाह, ये अमित शाह सब मिलकर क्रिकेट मैच खिला रहे हैं। अब बताओ कौन एंटी नेशनल है और कौन राष्ट्रवाद है? वारिस पठान तो ऑब्जेक्ट कर रहा है कि भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए, और ये अमित शाह में और जय शाह में थोड़ा भी नेशनलिज्म पेट्रोटिज्म बचा है ना, तो 15 तारीख को भारत के साथ पाकिस्तान का मैच मत खिलाओ।
चुनिंदा रुपयों के लिए ये भूल गए मेरी बहन के सुहागों को जो आतंकवादियों ने आके पहलगाम में उजाड़ दिया, भूल गई है पुलवामा, भूल गई है 26/11, भूल गई है लाल किला, और मैच खिलवा रहे चुनिंदा रुपयों के लिए। ये एंटी नेशनल है, ये पेट्रियोटिज्म नहीं है इनमें। वारिस पठान पेट्रियोटिक आदमी है, नेशनलिस्ट आदमी है, प्राउड भारतीय मुसलमान है, एंड दैट इज व्हाई आई से डोंट गिव अस अ सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म. वी डोंट वांट फ्रॉम द बीजेपी एंड आरएसएस बिकॉज वी नो वी आर प्राउड इंडियन मुस्लिम्स एंड व्हाट वी हैव डन फॉर sacrifices we have done for the great nation. We know where was the RSS, where was the BJP, and how many RSS even people have hanged themselves by saying, sir, I don't even know how many RSS people went to into the jail a debate about your nationalism or anyone else's nationalism, which is exactly the point I made at the beginning. It was never about religion, it was never about nationalism, it was actually only and only about politics, and that too a very sectarian and communal brand of politics. And that is the reason why I asked you a simple question. When Vande Mataram was only 2 stanzas, when it had no reference to Durga, Saraswati, Lakshmi, when it wasn't idolatrous, when I was an why MLA, did you still refuse to sing answer. it, Mr. Pathan? Listen that to my was answer. a simple question. When I was an MLA in it the wasn't Maharashtra because of Assembly, nationalism. at the It wasn't because of anything else. It was because of politics. We used to stand up and politics. sit quiet. We used to stand up and be quiet, yeah. We used to respect, we used to stand up and be quiet, that's it. I was an MLA in the Maharashtra Assembly, Yeah. and whenever the Vande Mataram was being played, we used to stand up quietly and sit. But now what they say is you have to sing. Okay. Who are they to... Why were you quiet? I leave that to the Who are wisdom of the they? viewers. I am following the constitution. Yes, and the constitution also says that when there are certain symbols of the state, symbols of the country, everyone respects them because we are all Indians. I'm completely out of time. Gentlemen, for joining me, thank you very much.